Let's improve English. Why should I watch this video? If you're wondering, then let me explain this to you in simple lines why you should watch this video instead of giving a long introduction, probably boring. You should watch this video because you'll learn useful phrases and words in daily life sentences. You'll practice well by trying to translate the sentences that I mention in Hindi. You'll learn how to say certain things in multiple ways. You'll have a great listening practice as you watch the video. वो सारे दिन से खासे ही जा रहा है, इसे इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? He has been coughing all day. He has को शॉर्ट में he's ऐसे कह सकते हैं. He's been coughing all day. He's been coughing all day. हम बोल सकते हैं the entire day or the whole day or just all day. उसकी खांसी नहीं रुक रही है, इसे इंग्लिश में कहेंगे He can't stop coughing. He can't stop coughing. उसका बस चले तो मुझे घर ही ना जाने दे. He won't let me go home if it's in his power. If it's in his power. अगर उसका बस चले, अगर उसका जोर चले तो वो तो मुझे घर ही नहीं जाने देगा. अगर मेरा बस चले तो मैं किसी को यहाँ ना आने दूँ. I won't let anyone come here if it's in my power. If it's in my power. तो जब भी आपको कुछ ऐसा कहना हो, अगर मेरा बस चले, अगर मेरे बस की बात होती, अगर उसके बस की बात होती, if it were in his power, if it were in my power, यहाँ पर हम इसको फर्स्ट कंडीशनल ट्रीट कर रहे हैं कि अगर मेरा बस चलेगा तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, if it's in my power. अगर मैं इसको इमेजिनरी बनाना चाहता हूँ तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ if it were in my power. अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा करता, if it were in my power. वो खुद बिका हुआ है. यहाँ पर आप समझिए, ये उस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ कि जब किसी ने रिश्वत ली हुई है या किसी और की बात वो सुन रहा है, कुछ इलीगल काम कर रहा है, हम कहते हैं ना वो तो बिका हुआ है. इसके लिए हम कह सकते हैं he himself is corrupt. He himself is corrupt. corrupt यहाँ पर बिल्कुल सूटेबल वर्ड है. इसकी जगह पे आप बायबल या डिसऑनेस्ट भी कह सकते हैं. he is बायबल और he is dishonest. he is corrupt. मुझे तो वो सारे लोग बिके हुए लगते हैं. All those people seem corrupt to me. All those people seem corrupt to me. मतलब वो सारे बिके हुए लगते हैं, उन्होंने रिश्वत ली है या वो कुछ गलत काम कर रहे हैं. बड़ा इतरा के चल रहा है, जैसे कि पीएम हो. इतरा के चल रहा है वो बड़ा, इसे कह सकते हैं He is prancing around as if he were the PM. He is prancing around. He is prancing around as if he were the PM. So friends, prance का मतलब होता है इतरा के चलना, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में चलना, एटीट्यूड दिखा के. He is prancing around as if he were the PM. He is swaggering as if he were the PM. Swagger as a verb, it also means to walk with a lot of confidence. He is swaggering as if he were the PM. वो इतरा के अपने कमरे में चला गया. He swaggered into his room. He swaggered into his room. So we use swagger this way. आपको देख के तो सब ठोकर खा के गिर जाएंगे, मतलब मैं किसी की खूबसूरती की तारीफ कर रहा हूँ. Everyone will trip and fall when they see you. जब वो देखेंगे ना, देख के तो ठोकर खा के गिर जाएंगे. ढंग से चलो, ठोकर खा कर गिर मत जाना. ठोकर खा लेने को हम इंग्लिश में ट्रिप करना बोलते हैं. Walk properly, don't trip and fall over. Don't trip and fall over. यानी ट्रिप करके गिर मत जाना. जितना मैंने सोचा था ये सवाल उससे ज़्यादा मुश्किल है. This question is more difficult than I thought. This question is more difficult than I thought. जितना मैंने सोचा था वो उससे ज़्यादा सुंदर है. She is more beautiful than I thought. Than I thought. यानी जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा. She is more beautiful than I thought. मैं घर पे हूँ और मेरा भाई भी. जब इस तरह से हमें दो बातें कहनी हो तो हम ऐसे कह सकते हैं I am at home and so is my brother. ये वो कहने से अच्छा है I am at home and my brother is also at home. इसकी जगह आप कह सकते हैं I am at home and so is my brother. बैंक बंद था और पोस्ट ऑफिस भी. The bank was closed and so was the post office. पास्ट की बात है तो हमने am की जगह पे is की जगह पे was लगा दिया. The bank was closed and so was the post office. खाना इतना स्वादिष्ट है नहीं जितना कि दिख रहा है. The food is not as tasty as it looks. फ्रेंड्स, हिंदी में हम कहते हैं दिख रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको कंटिन्यूस बनाएंगे. वो दिख रहा है और ये कोई एक्शन नहीं है, ये उसकी स्टेट है. इसलिए लुकिंग नहीं, सिर्फ लुक का यूज़ करेंगे. The food is not as tasty as it looks. It's a stative verb. मुझे तो लग रहा था कि खाना स्वादिष्ट लगेगा.
I thought the food would taste delicious. I thought the food would taste delicious. मैं एक दुकान खोलने की सोच रहा हूँ. जब भी आपको कहना हो मैं ऐसा करने की सोच रहा हूँ, वैसा करने की सोच रहा हूँ, I am considering opening a shop. Consider doing something यानी कुछ करने की सोचना. आप कह सकते हैं I am planning to open a shop और I am considering opening a shop. मैं सोच रहा हूँ कि नौकरी छोड़ूं या नहीं. I am considering whether to leave the job or not. I am considering whether to leave the job or not. मैं उसे सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझता. I don't consider it necessary to tell him everything. फ्रेंड्स, जब आप किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हो, when you're thinking about something, it's a process. इसलिए वहाँ पर हम उसको continuous form में यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका कुछ मानना है, कुछ बिलीफ है, आप ऐसा सोचते हो, तब हमें उसे continuous form में यूज़ नहीं करना. I don't consider it necessary. मैं ये नहीं कह सकता कि I am not considering it necessary, क्योंकि ये मेरा बिलीफ है, या तो मैं मानूंगा या नहीं मानूंगा, इसमें कुछ कंटिन्यूस नहीं हो सकता है. I don't consider it necessary to tell him everything. इसका मतलब आपको ये समझना है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. उनके मल्टीपल मीनिंग्स हैं और हो सकता है एक मीनिंग के साथ वो कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ हो सकते हैं, लेकिन दूसरे मीनिंग के साथ वो नहीं हो सकते. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही. आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा. इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. सो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.